All right, good evening, everyone. Good afternoon, everyone. In fact, we'll wait for 5 more minutes for everyone to join in, and then we will start. आई होप आप लोगों ने अपने डाउट्स बुकलेट के जो डाउट्स हैं वो गूगल स्प्रेडशीट में ऐड कर दिए हैं. आई कैन सी HA3 एंड HA4 में कई स्टूडेंट्स ने डाउट्स ऐड करे हैं. विल आंसर दोज एज वेल एज डिस्कस वॉल्यूमेट्रिक चैप्टर का एक बेसिक ओवरव्यू एंड सम ऑफ द टॉपिक्स व्हिच गॉट ब्लर्ड. So yeah, there is a concern which a lot of students have been asking me कि HA2 को हम लोग कैसे हैंडल करें. अभी HA2 के लिए स्पेसिफिकली आप लोग वीडियो लेक्चर 3 देखोगे तो हो जाएगा, बिकॉज दैट वीडियो लेक्चर 3 इज समथिंग ऑल अबाउट HA2 ओनली. द थिंग इज हाउ HA2 आपको लगेगा टफ, इट इज एक्चुअली क्वाइट इजी, बट उसमें बस एक टाइप के क्वेश्चंस को बार बार पूछा जा रहा है. तो इट इज काइंड ऑफ समथिंग विच रिक्वायर्स यू टू गो थ्रू दैट लेक्चर नंबर 3. ठीक है. अब बिकॉज एज आई सेड कि मुझे अभी वॉल्यूमेट्री की डेप्थ में नहीं जाना है, आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ गुड इनफ बेस सो दैट वी आर रेडी फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो आई वुड नॉट वांट टू गो इन लॉट ऑफ डिटेल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एज अ चैप्टर. वॉल्यूमेट्रिक हम लोग अलग से डेफिनेटली इंश्योर करेंगे कि हमारा कंप्लीट हो रहा है. थोड़ा सा अभी प्रोसेस स्मूथ आउट होने दो, थोड़ा सा वी गेट kind of up to date with the syllabus that is going on, because अगर आपका अभी टेस्ट वगैरह होगा या फिर आपसे स्टेप ऐप का गेम खेलने को बोला जाएगा, तो all those things would require you to be at the same page as the other batches. So I do not want to take an entire week or two more so as to get done with volumetric. अभी जितना है उतना सिलेबस सफिशिएंट है, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको उसके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. Personally, if someone wants to take an attempt at HA2, video lecture 3 is the way to go. All right, so I've shared my screen. I hope everyone is able to see it. So we have Thursday को lecture with us, no? हाँ, तो ठीक है. थर्सडे के लेक्चर के बाद में I'll tell you what to do in electrochemistry. Till now, just ensure that volumetric के basics are clear with everyone. ठीक है. And I'm pretty sure that you guys are now swamped with a lot of work. एक साथ 6 ट्रैक्स का लोड अब वापस से आप लोगों के ऊपर आ गया है.
distribute your time accordingly, ensure that completion is happening. Chemical kinetics का that Google form आप लोगों ने भरा था, उसके लिए thanks a lot. I got to know and understand that this is what everyone has been doing. So batch one में फिर भी the completion level was pretty good, like in terms of the video lectures that have been seen and the booklet completion also. But it was not enough. It was satisfactory. There were some students who have not seen the video lectures completely, and there were some students who just did FBO. Even FBS was partial. So please ensure that that completion is happening. Updated in the Google Forms, and soon, if you are not updating, then you will get calls from the PACE admin team highlighting that you have not updated the response and you have not played or not completed the booklet or asked your doubts. So do that proactively so that we are kind of informed in terms of how everyone is doing. All right, so let's begin today's discussion. We have a good number of participants with us. Now, as you all know, मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ वॉल्यूमेट्रिक के चैप्टर का, and also talk about couple of sections which were not clearly visible to everyone in those video lectures. Now, starting part was something which we understood the concept of what is redox, as in what is reduction and oxidation. Then इसके बाद में I had asked you to understand and remember the in fact oxidation number का concept था. There were these miscellaneous examples जो मैंने आपको बोला था याद रखने हैं. Then once we were good with this, then we understood what is meant by redox reaction and its types. What were the different types of redox reactions? इसमें हम लोगों ने I think 3-4 टाइप पढ़े थे. Disproportionation, comproportionation, intramolecular redox, or it was called as auto redox, and yeah, I think यही टाइप के थे. बाकी तो सिंपल redox reaction भी था. In fact, parallel or series redox reaction भी था. Not series, parallel, multiple redox reactions happening together. Then after this, I had asked you to go through the list of common oxidizing agents and reducing agents plus their reactions. Right, this was something that we had shared a PDF file, if you remember, and this was something that was a must for you to remember, because you would have realized after seeing a lot of questions before the major test as well, that you needed to remember certain examples, remember certain reactions, right? Then after understanding these lists of common reducing and oxidizing agents, we went into doing the N factor and its calculation. Just a second, guys. I would need to pause for a second. All right, I'm back. Now, after N factor and its
कैलकुलेशंस एज आई वाज सेइंग कि हम लोगों ने इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ठीक है. इनफैक्ट बिफोर आई टॉक अबाउट द इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट, there was one more thing which I would want to highlight here, that n factor calculation में there was a simple scenario जहाँ पर हम लोग definition apply करके n factor calculate कर लेते थे. Then there was the case of parallel redox reaction also, जहाँ पर वापस से definition based हम लोग calculation कर लेते थे. Like we had done multiple examples कि एक कंपाउंड के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जो कि ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या फिर रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब ऑल ऑफ देम आर ऑक्सीडाइजिंग और ऑल ऑफ देम आर रिड्यूसिंग, राइट. इनमें हमें बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं था, बैलेंसिंग वाज नॉट रिक्वायर्ड. whereas then the other case that we came across was जहाँ पर you know, I think I had named miscellaneous scenario 1. I don't remember the naming as such, but I hope it tallies. जहाँ पर you know, एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा था बट मल्टीपल स्टेट्स में ऑक्सीडाइज हो रहा था से, so we had to do balancing. So definition was applicable, but only after balancing. Then there was I would say miscellaneous scenario 2, which was the comproportionation and disproportionation. Comproportionation and disproportionation के cases जहाँ पर there was this formula that we had to apply. Definition and all, definition was not applicable. इसमें basically हम लोगों ने law of chemical equivalence को reverse use किया था. And then there was this miscellaneous scenario 3, which was intramolecular redox. Again, इसमें we had that formula which said that n factor is n factor oxidation or n factor reduction. Then इसके अलावा भी मैंने आपको बोला था कि अगर कोई और miscellaneous scenario बैठता है तो उसमें आपको law of chemical equivalence को use करना पड़ेगा, back calculate करना पड़ेगा. So then इसके बाद हम लोगों ने law of chemical equivalence, in fact not बाद में, इसके पहले ही पढ़ लिया था, law of chemical equivalence and you can say equivalence concept as such. And इसमें we had discussed these terms like you know, what is equivalent weight, what is meant by equivalence, what is meant by normality, and ये सब formula again आपके fingertips पे रहने चाहिए थे. All of these were based on n factor, how they were related to mole concept, right? हम लोगों ने इतना क्लास में अच्छे से कर लिया था, इसके ऊपर enough practice questions भी कर लिए थे, so that you were well prepared for the you know, the major test का जितना portion हमको include करना था. And post this, then we didn't get much time to discuss. So उसके लिए आप लोगों ने फिर video lectures देखे हैं, and you can say that lecture 4 to lecture 7, they all were based on redox titrations. Okay, this was something which used the above concepts only, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है. इसमें कुछ खास नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने नहीं आते हैं, एक दो एस्पेक्ट्स हैं जो कि ध्यान रखने पड़ते हैं. अदरवाइज it was more of an application of all that we had learned before. ठीक है. Then in redox titrations हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसको फर्दर सब डिवाइड करा था into simple titrations, you know, double titrations and
back titrations. So it's the same concept only, just calculations थोड़ी बहुत चेंज होती जाती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जिनको आपको हैंडल करने का तरीका एग्जांपल्स के थ्रू ही सीखना रहता है, प्रॉब्लम्स के थ्रू ही सीखना रहता है, जस्ट नाम के लिए नाम है इनके। राइट नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस, अब आप लोगों को सिंपल टाइट्रेशंस के बारे में मैं एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। सिंपल टाइट्रेशंस में व्हाट वी हैड वाज यू नो एक ही रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, only one reaction, right? It could be a redox reaction, redox reaction between a reducing agent and oxidizing agent, or it could be acid base reaction, ठीक है, just एक ही reaction होता था and indicator worked well in these cases ताकि हमें कोई दिक्कत ही नहीं आए। इंडिकेटर यूज करके we can identify the endpoint endpoint easily identified एंड देन उसके बाद हम लोग सिंपल हमारा एनालिसिस करते थे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का, दैट इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बिकम्स इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब इसमें जो नोट करने लायक एस्पेक्ट ये था अप्रोच के बाद में, दैट knowledge of reactions and n factor calculations, they become, you can say, prerequisite, this spelling पता नहीं क्या है, I think सही है, they kind of become prerequisite for these questions, right? So इसमें अभी तक किसी को कुछ पूछना है पर्टिकुलरली, किसी को कुछ डाउट है जितना पार्ट हमने देखा है उसमें? You can like tell me the questions, unmute yourself, chat पे आप डालोगे तो मेरे लिए थोड़ा सा बस यही दिक्कत है, that I'll have to come out and see. Okay. Balancing of redox reaction पे आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ. It is not something जहाँ पर you just follow those simple steps. Like वो जो MT का क्वेश्चन था, आई एम श्योर कि उसको लेकर आपको दिमाग में डाउट्स आ रहे होंगे, दैट वो MT का क्वेश्चन कैसे करना था, क्या करना था, हाउ डिड इट हैपन, बट बिलीव मी, इफ यू वुड हैव फॉलोड दो सिंपल स्टेप्स जो मैंने आप लोगों को क्लास में सिखाए थे, तो आपसे वो क्वेश्चन हो जाता। नाउ उसके ऊपर भी एक डाउट था स्टूडेंट्स का, दैट डिस्पाइट नॉट फॉलोइंग द स्टेप्स जो आपने बताए हैं, हम लोग खुद के मन से कर लेंगे तो भी वी विल बी एबल टू गेट ऑल द आंसर्स। तो उसमें एक चीज नोटिस करना कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम। लेट मी जस्ट क्विकली ओपन दैट क्वेश्चन एंड डिस्कस दैट एज वेल। यहाँ पर एक छोटा सा, आई स्पेंड जस्ट कपल ऑफ मिनट्स ऑन दैट क्वेश्चन। पेपर 1 में था, पेपर 2 में था? कहाँ गया? अरे let me see, just give me 1 second. हाँ, ये पेपर 1 में ही था। So okay, you were asked to solve this. I2 plus O3 is given I4 O9 plus O2, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा था। एंड
इसमें अगर आप नोटिस कर दे तो आयोडीन 0 से +4.5 जा रहा है और ऑक्सीजन 0 से -2 जा रहा है, कुछ 0 में भी रह रहा है तो वो पार्ट स्पेक्टेटर है, बाकी कुछ रिड्यूस होके -2 में जा रहा है। ठीक है, तो अगर अब आप इसको सॉल्व करना था तो हम लोग कैसे करते हैं, दैट I2 गोज टू I4। ठीक है, 0 से ये +4.5 जा रहा है, तो पहले तो एटम बैलेंस कर देते, 2 एटम इधर हो गए। ठीक है, और 4 इधर थे तो 2 इधर कर लिए। अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हिसाब से देखेंगे, चार्ज बैलेंस करना है तो यहाँ पर 4 एटम 4.5 है, तो यू कैन से 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिबरेट हो रहे हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली O3 was going here to O9, ये 2 माइनस स्टेट में है, 0 से जा रहा है, तो वापस से एज यू कैन सी दैट एटम्स को बैलेंस करना पड़ेगा, तो पहले एटम्स बैलेंस हो गए एंड उसके बाद में अब चार्ज का देखना है, तो यहाँ पर +18 इलेक्ट्रॉन्स लगेगा। ठीक है, एंड with that now you go about adding it, so कैसा बनेगा ये 2I2 + 3O3 is giving I4O9। ठीक है, एंड अब इसमें आपको ये इंश्योर करना है दैट ऑक्सीजन यहाँ पर 2I2 + 3O3 एंड ये I4O9 हो गया है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर आ रहा है एक्स्ट्रा, तो इस केस में what you need to now do is just ensure that the electrons being added here are fractional only, so actually इसमें ओजोन की प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है, ओके, इसमें एक एडेड नॉलेज और लग रहा है बस। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच मेड द क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड। सो द थिंग इज, जब ओजोन acts as oxidizing agent, ठीक है, so then what happens is that it goes to O2 minus and O2, मतलब out of the 3 atoms that are there in ozone, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजोन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ओजोन खुद -2 में आता है एक एटम, ठीक है, 1 एटम कम्स हियर एंड 2 atoms दे गो इनटू O2। अब द थिंग इज, जब मैं यहाँ पर इतना पार्ट लिख लिया हूँ ऊपर से, तो इसमें क्या हुआ, इसमें द अंडरस्टैंडिंग दैट वेंट वाज that what I had done is I had taken all the oxygen atoms going to -2। अब ये नॉलेज जो है, ये अब ओजोन की पर्टिकुलर नॉलेज है दैट out of the 3 oxygen atoms just 1 goes as -2 and the other goes as other 2 goes O2 atoms। तो अब ऐसा है कि मुझे अगर 9 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर -2 स्टेट में चाहिए हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर
9 ओजोन एटम्स एज 9 ओजोन के मॉलिक्यूल्स लगेंगे so as to get them to -2 and then जो बचे हुए हैं they actually go into oxygen gas. तो इसमें ये एक थोड़ा सा कैच आ गया, अदरवाइज द स्टेप्स वर सिमिलर. ठीक है, एंड इसमें एक और डाउट जो रहता है स्टूडेंट्स का वो भी मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ. द फैक्ट दैट समवन वुड हैव कम अप विद दिस दैट सर बाकी ऑप्शंस भी तो बैठ रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन वुड हैव चोजन कि हम लोग 5 भी तो देख सकते हैं यहाँ पर. अगर मैंने 5 यूज कर लिया तो 5 मतलब 15 में से 9 तो इधर आ गए. ठीक है, एंड ऑलरेडी बैलेंस कर लिया. 9 15 - 9 कितना होगा 6, तो ये 3O2 ये भी तो बैलेंस्ड इक्वेशन है. ठीक है, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस? नाउ दैट इज द प्रॉब्लम. one thing that does is it kind of takes away this, it kind of contradicts this aspect of ozone, that ozone acts as an oxidizing agent in this manner, that it goes to one atom going to O2 minus and the other two atoms go to O2. It contradicts that. Or if you want to think it from the other perspective also, that it might come across as that fractional electrons का exchange हो रहा है यहाँ पर. अगर मैं इसको read करूँ इस तरीके से, that but I think a fractional electron से ज़्यादा better explanation is this only, that O3 has this particular property that one atom goes as O2 minus and the other two goes as O2. ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट है? No, you were not supposed to know it during the MT. This is not something of a very common thing. It is not something, ये kind of difficult question मान सकते हो आप. All right. इसके अलावा कुछ और पूछना है आप लोगों को यहाँ तक के डिस्कशन में? Naughty America. Nobody does it better. All right. Which last part? Wait, so you had asked a question on the chat, that last part, इसमें से कौन सा वाला part था जो आपको दोबारा समझना है? Just a second, sorry. Screen share, एक मिनट. हाँ. See the balancing वाला ये question पूछ रहा था किसी ने MT में, तो मैं उसका explanation दे रहा था that how it goes about. Now the method goes in the same manner जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था. However, the aspect of that ozone, हम लोगों ने जब तक बैलेंस अपने पुराने मेथड के साथ में करा था तो वी वर गुड टिल हेयर, यहाँ तक का हमें समझ में आ गया था. ठीक है, ये हमने अपने रेगुलर क्लास के मेथड के हिसाब से कहा था. इसमें जो एक्स्ट्रा नॉलेज लग रहा है, द फैक्ट इज दैट ऑक्सीजन एज अ होल मॉलिक्यूल व्हेन इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें से एक एटम O2 माइनस में जाता है एंड 2 एटम O2 में आते हैं. ठीक है, इनफैक्ट
So this is something which I do mention in the class, but क्योंकि हम लोगों ने आगे का पढ़ा नहीं है, I'll tell you the question number. Just wait a second. हाँ, so booklet में when you will do the questions, so passage 2 का, ठीक है, passage 2 का क्वेश्चन नंबर 4 जब आप करते हो तब ये नॉलेज लगता है. मैं टिपिकली आप लोगों को उस टाइम पर इसके बारे में बताता हूँ दैट ओजोन किस तरीके से वर्क कर रहा है. अब इट्स नॉट अ कॉमन वन, इसलिए आई डू नॉट ब्रिंग इट अप इन द बिगिनिंग इटसेल्फ. हाउएवर आपके लिए स्टार्टिंग में ही ये डिस्कशन में आ गया. Sir, हाँ, but the reaction curve written is not balanced. नहीं नहीं, इसको 9 से रिप्लेस करो. दिस 3 को रिप्लेस इट विद 9. Even then, on left it is 27 and on right it is 17. Sorry? On the left side, oxygen is 27 and on right it is 17. 12 प्लस 9, तो Sorry, फिर not ये 17, O2, रुक जाओ, ये O2 को कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा. कितना है लेफ्ट हैंड साइड पर? 27 माइनस 9 कितना होता है? 18. 9 हो जाएगा, सॉरी माय बैड. 9 O2. अभी ठीक है. सी वो पार्ट ना स्पेक्टेटर है. दिस O2 इज स्पेक्टेटर. दिस इज नॉट रियली पार्टिसिपेटिंग इन द रेडॉक्स. वो मैंने आखिरी में गलत कैलकुलेशन करके 6 लिख दिया वहां पे. अभी ठीक है. Okay. इसमें और कोई डाउट है किसी को? ठीक है. सो देन लेट्स रिज्यूम. हम लोग सिंपल टाइट्रेशंस का डिस्कशन कर रहे थे. तो सिंपल टाइट्रेशन का पार्ट सबको क्लियर था. देन उसके बाद में डबल टाइट्रेशन एंड बैक टाइट्रेशन के बारे में मैं आपको आइडिया दे देता हूँ. सो डबल टाइट्रेशन and back titration, they are kind of just multi-step titrations. इनके बारे में common understanding कैसी है that there are going to be multiple steps or you can say reactions. पहले simple titration में कैसा था? एक ही सिंगल रिएक्शन हो रहा था और उसका एनालिसिस करना था. यहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स या मल्टीपल रिएक्शंस करने पड़ते हैं. उसके पीछे का रीजन भी समझना, बिकॉज हो सकता है बिकॉज एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट स्टेप और यू कैन से द फर्स्ट रिएक्शन इज नॉट इजी टू डिटरमाइन. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अब इनका रिएक्शन हो रहा है, बट अब इस रिएक्शन में से कलर की वजह से या किसी और तरीके से हम लोग एंड पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे इन दिस फर्स्ट रिएक्शन. तो हम लोग अब क्या करते हैं, नोटिस करना that we do ensure that the reaction, the first reaction goes to completion. तो से ये जो अननोन है जिसके बारे में हमें आइडेंटिफाई करना है, इसकी क्वांटिटी के बारे में पता करना है,
तो हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि फर्स्ट रिएक्शन में ये पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाए, ठीक है। अननोन कैन बी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल चेंज हो सकता है। बट द थिंग इज कि जो एक अननोन है वो पूरा रिएक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग इंश्योर करेंगे दैट द अदर रिएजेंट इज एन एक्सेस, ठीक है। अब ये रिएक्शन पूरा होने के बाद में अब मैं ये सेकंड रिएक्शन कराना चाहूंगा, विच कैन बी, आई हैव टू ऑप्शंस, आइदर आई कैन डू दैट प्रोडक्ट का रिएक्शन विद सम स्टैंडर्ड रिएजेंट, ठीक है, किसी स्टैंडर्ड रिएजेंट के साथ में प्रोडक्ट का रिएक्शन करा दूं, और इसमें अब क्या बोलूंगा मैं कि इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिएजेंट इज इक्वल टू, अगर एन फैक्टर सेम रहे तो इक्विवेलेंट ऑफ जो फर्स्ट रिएक्शन में मेरा अननोन था, ठीक है, उसके बराबर लिख सकता हूं मैं। तो मुझे मेरा अननोन का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है, इसको हम लोग बोल देते हैं डबल टाइट्रेशन। दूसरा ऑप्शन मेरे सामने क्या है कि चलो प्रोडक्ट को नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट अलग सा आ गया है, प्रेसिपिटेट आ गया है या समथिंग कुछ ऐसा है, तो ठीक है प्रोडक्ट के साथ नहीं करते हैं। फिर जो मेरा लेफ्ट एक्सेस रिएजेंट है, लेट्स से इस केस में ये वाला था, ये इसका एक्सेस जो बच गया है पार्ट, उसको मैं किसी स्टैंडर्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करा दूंगा, तो उससे मुझे जितना लेफ्ट है वो पता पड़ जाएगा, और क्योंकि मुझे इसका ओरिजिनल अमाउंट पता था, तो फर्स्ट रिएक्शन में कितना रिएक्ट होगा वो मुझे पता पड़ जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल माइनस जितना सेकेंड रिएक्शन में रिएक्ट हो रहा है उतना फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्ट हुआ होगा, एंड देन जितना मुझे फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्ट हुआ पता पड़ गया है, तो आई कैन देन इक्वेट द इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन एंड देन डिटरमाइन द अननोन। सो ये इसका मेथोडोलॉजी है, ठीक है। अब ये मेथोडोलॉजी समथिंग बिकम्स मोर एंड मोर क्लियर टू यू व्हेन यू डू और प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। सो जब आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे होगे तो उसमें भी ऐसा होता है, क्लास में जब मैं पहली बार ये चीज़ ऐसे ओवरव्यू देकर समझाता हूँ तो इतना अच्छे से समझ में नहीं आती है। You really need to have the examples before you so that you can understand this better, ठीक है। So that is where a lot of examples in the video lectures are to be practiced, as well as homework assignment जो आपको मिलता है उसमें भी वो questions आपको practice करने होते हैं, ठीक है। अब इसमें I am assuming or I am hoping that none of you are sitting here without seeing the video lectures. So you would have seen some examples and you would have kind of correlated how this approach worked. Now, ये approach के साथ में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इसमें बस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको और क्वेश्चंस में ध्यान रखना होता है, which is kind of a trick, which is kind of a a factor that makes the questions difficult, is don't equate equivalents of common species between reactions if its n factor is different in both reactions, ठीक है। जो हम लोगों ने रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करा वो हमने कॉमन स्पीशीज की मदद से किया, एंड हम लोग कॉमन स्पीशीज के इक्विवेलेंट दोनों रिएक्शन में इक्वेट करके एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हैं, बट दैट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इफ द कॉमन स्पीशीज का एन फैक्टर इज सेम इन बोथ द रिएक्शंस। अगर एन फैक्टर डिफरेंट हो रहा है देन
मिलीमोल्स कम टू द रेस्क्यू. आप मिलीमोल्स इक्वेट करो. मिलीमोल्स ऑफ द कॉमन स्पीशीज कैन बी इक्वेटेड. इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. ऑल राइट. इसमें और कुछ किसी को कुछ डाउट है? एनीथिंग समवन वांट्स टू ऐड समथिंग इन पर्टिकुलर? ठीक है. अब अगर ये ओवरव्यू आप लोगों को समझ में आ गया है तो आई कैन either take an example or two to make you understand this better, or we can solve the booklet ke questions itself. What would be your choice? ठीक है. एक दो एग्जाम्पल करके बता देता हूं मैं. Okay, I'll do one or two more examples. Give me 1 minute. All right, so मैं मेरे नोट्स में से ही एग्जाम्पल लेता हूँ एक दो. आई थिंक वो मैंने वीडियो लेक्चर में भी लिए थे. सो इन केस you want to add to it or ask anything from it, we can work with this. ठीक है. So let me take this example. आपको दिया जा रहा है 100 ml H2O2. ठीक है. 100 ml H2O2 solution reacts completely with Ki solution and oxidizes it to I2. ठीक है. The liberated iodine required 25 ml of 0.1 molar Na2H2O3 solution in basic medium. ठीक है. Determine the molarity of H2O2 solution. ये आपके सामने क्वेश्चन है. ठीक है. अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोटिस कर लेंगे. The first thing that you should be clear is with the reactions. पहला रिएक्शन है H2O2 plus I minus is going to give you I2. ठीक है. And what will be the product? Aside from this, can anyone tell me? H2O. H2O. राइट. से यहाँ पर कैसा हो रहा है? आयोडीन खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या होगा? रिड्यूस होगा. तो -1 से -2 में आएगा. ठीक है. ग्रेट.
Then the second reaction, can anyone tell me the second reaction? What will happen with between I2 and S2O3 2 minus? SO4 2 minus. Perfect. Basic medium में SO4 2 minus बनेगा, and of course iodine will go to I minus. तो ये 0 से -1 जा रहा है, सल्फर यहाँ पर +2 से +6 में जा रहा है. ठीक है. Now the thing is, from the first reaction, equivalence of H2O2 is equal to equivalence of I2, and from the second reaction, as you can see, equivalence of I2 is equal to equivalence of S2O3 2 minus, right? Now in both reactions, n factor of I2 is what? कोई बताओ? 2. 2. तो ये both में 2 ही है, same है. तो I can then do this. Equivalence of H2O2 is equal to equivalence of S2O3 2 minus. ठीक है. So now this will be you can say N1 M1 V1 is equal to N2 M2 V2. ऐसे इक्विवेलेंट लिखते हैं. n फैक्टर इनटू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. अब H2O2 का n फैक्टर 2 है, मोलारिटी हमें फाइंड करनी है, वॉल्यूम 100 ml दिया हुआ है, इज इक्वल टू, अब H2O3 का n फैक्टर कितना आएगा? H2O3 2 माइनस आयंस का, हाइपो का. यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये +2 से +6 जा रहा है, यानी कि 4 का चेंज है और 2 आइटम्स है, तो ये 8 आ जाएगा n फैक्टर. एंड इसकी मोलारिटी 0.1 दी है, वॉल्यूम आपको 25 ml बोला ही है, तो इससे आप मोलारिटी बता दोगे, इसका 1 मोलर आ रहा है. इज दिस क्लियर? एनीथिंग टू ऐड टू इट? Sir, it will be 0.1 molar. Oh my bad, 0.1. ठीक है. Now एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एंड लेट मी टेक एन एग्जांपल जिसमें लेट्स से n फैक्टर थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, n फैक्टर डिफरेंट है, तो उस केस में आपको कैसे वर्कआउट करना रहता है. ठीक है. सो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, एंड दिस इज एन एग्जांपल जहां पर you have IO3 minus ions in a solution, ठीक है, which are mixed with excess I minus ions in acidic medium. ठीक है. Now what happens is, as a result, I2 produced, ठीक है, यहाँ पे कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, I2 produced required 100 ml of 0.1 molar hypo solution for titration. ठीक है. सो अब आपसे पूछा जा रहा है, डिटरमाइन द millimoles of IO3 minus in original solution. ठीक है. ऑल राइट. तो पहला रिएक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, IO3 minus plus I minus in acidic medium is giving I2. ठीक है. अब अगर मैं आपसे n फैक्टर पूछूंगा तो कौन बताएगा मुझे n फैक्टर? कोई बताओ n फैक्टर क्या क्या रहेंगे? चलो एक एक करके बता जाओ. IO3 माइनस का n फैक्टर कितना होगा? 5/3. 5. IO3 माइनस का तो सिंपल केस है ना, 5 से 0 जा रहा है, तो ये तो सिंपल केस को बिलोंग करता है. I माइनस का n फैक्टर कितना होगा?
1. 1, ये भी सिंपल केस को बिलोंग कर रहा है, यू नो, -1 से 0 जा रहा है। अब इसके केस में इट इज अ कॉम्प्रपोर्शनेशन, जहां पे फॉर्मूला लगेगा दैट 1 अपॉन n फैक्टर इज 1 अपॉन n फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस 1 अपॉन n फैक्टर रिडक्शन। ठीक है, अब ये ध्यान से ऑब्जर्व करना, ऑक्सीडेशन का क्या लगेगा यहाँ पर n फैक्टर का फॉर्मूला, यहाँ पर नोटिस करना -1 से 0 आ रहा है, यानी कि 1 का चेंज है, बट 2 एटम है, हमें इसी के बारे में बात करनी है, I2 के बारे में, तो हम I2 का ही लिखेंगे सब यहाँ पर। 1 का चेंज है और 2 एटम है, इसलिए n फैक्टर ऑक्सीडेशन 2 हो गया। n फैक्टर रिडक्शन के बारे में देखोगे तो क्या दिख रहा है, 5 से 0 आ रहा है, यानी कि 5 का चेंज आ रहा है, अगेन कितना एटम है, 2, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा दैट n फैक्टर हेयर इज 5/3। ये समझ में आया? ठीक है, ऑलराइट। अब दूसरा रिएक्शन क्या होगा, एनीवन वुड वांट टू टेल मी व्हाट वुड बी द सेकंड रिएक्शन? Sir, I minus plus S4O6 2 minus. ये तो प्रोडक्ट हो गया, राइट, ठीक है, I2 प्लस S2O3 2 माइनस इज गोइंग टू गिव यू I माइनस प्लस S4O6 2 माइनस। व्हाई? बिकॉज दिस वाज हैपनिंग इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में जा रहा है और ये +2 से +2.5 में आ रहा है, राइट। तो इसका n फैक्टर 2 हो गया, इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा, 0.5 इंटू 2, इसका n फैक्टर 1 एंड इसका n फैक्टर 2, 0.5 इंटू 4। एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस? ठीक है, मैं एक्स्ट्रा n फैक्टर निकाल रहा हूँ, जरूरत तो नहीं थी, बट ठीक है, चलो अभी एक एग्जांपल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मैंने निकाल के बता दिया, राइट। अब एज यू कैन सी, you know, from the first reaction, equivalent of IO3 minus is equal to equivalent of I2. Similarly, from the second reaction, equivalent of I2 is equal to equivalent of S2O3 2 minus. However, यहाँ पर अब ये catch है, ठीक है। However, n factor of I2 is not same in both the case, ठीक है। This implies can't equate equivalents, ठीक है। I will not be able to equate the equivalents, but I can definitely equate what? Sir, millimoles. Yes, but can equate millimoles of I2, ठीक है। तो अब जो पहला वाला इक्वेशन है, इससे आप देखो क्या बनेगा, इसी से ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, इससे मैं इक्विवेलेंट ऑफ IO3 माइनस क्या लिखूंगा, 5 इंटू इसके मिलीमोल्स IO3 माइनस जो हमें निकालने हैं इज इक्वल टू 2 इंटू मिलीमोल्स ऑफ I2, ठीक है। सेकेंड रिएक्टिव 2 उसका n फैक्टर था, सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पर n फैक्टर सॉरी 5/3 था, माय बैड, 5/3 था, ठीक है। एंड इन द सेकेंड केस n फैक्टर 2 है, तो 2 इंटू millimoles of I2 will be equal to what, 1 into 100 into 0.1, ये इक्विवेलेंट्स ऑफ S2O3 2 माइनस आ जाएंगे हाइपो के, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज 5 इंटू n अपॉन 5/3 इज इक्वल टू 1 इंटू 100 इंटू 0.1 अपॉन 2। इससे आपका n का वैल्यू आ जाएगा, मिलीमोल्स ऑफ IO3 माइनस आ जाएंगे,
Now is this comfortable with everyone? ठीक है, अब पूरे चैप्टर में एक्चुअली इसी के ऊपर क्वेश्चंस है, इसी चीज को अप्लाई करा जा रहा है बार बार डिफरेंट क्वेश्चंस में, एंड आपसे प्रैक्टिस करवाई जा रही है. ठीक है, so with these two examples in place, if you have anything particular to ask, go ahead. Otherwise I'll start solving the doubts from the HA3 and HA4. सर ये n फैक्टर सेम क्यों होना चाहिए हमेशा टू इक्वेट द इक्विवेलेंट्स? हाँ, n फैक्टर सेम रहेगा तो हम इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर सकते हैं. अगर n फैक्टर डिफरेंट हो गया तो फिर मिलीमोल्स को इक्वेट करना सही है. ठीक है, जो कॉमन स्पीशीज है उसके बारे में बात करी जा रही है. ऐसा क्यों कर रहे हैं? एनीवन वुड वांट टू एक्सप्लेन कि अगर n फैक्टर डिफरेंट है तो इक्विवेलेंट्स क्यों नहीं इक्वेट कर सकते? कोई तो होगा. हार्दिक तुम बताओ, कुछ तो अटेम्प्ट लो. हार्दिक बैठा है कि नहीं बैठा है? सर पता नहीं. नहीं पता, रट्टा मार लिया. सर हाँ बोलो. सर the first prove equivalent concept using mole concept. I think that if मतलब n factors are non-zero, we can't prove that using mole concept. So equivalent concept is not valid for it, and we need to mole करना पड़ेगा. थोड़ी आवाज तुम्हारी ब्रेक हो गई एक्चुअली, इतना क्लियरली सुनाई नहीं दिया. बट चलो मैं एक और हिंट देता हूँ, बाकी लोगों के लिए सोचने के लिए भी मैं एक हिंट देता हूँ. दैट रिकलेक्ट द डेफिनेशन. व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ n factor and what was the definition of equivalence? हमारी टॉपर है क्या? सरीशा बैठी है क्या क्लास के यहाँ पे? सरीशा, आर यू देयर इन द लेक्चर? हाँ है तो सही. You would like to comment on it? चलो वो एकदम ठीक है. किसने मुझे चैट पे डाला है दैट इक्विवेलेंट्स विल बी डिफरेंट इन बोथ द रिएक्शंस. वेल यस, n फैक्टर डिफरेंट है, इक्विवेलेंट्स डिफरेंट रहेंगे. राइट, तो एक बार मैं क्विकली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन, n फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता था? n फैक्टर का डेफिनेशन होता था, एक तो होता था नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल. दैट वाज वन डेफिनेशन. द अदर डेफिनेशन वाज n factor represents number of moles of electrons given or taken by 1 mole of species. एक मोल ऑफ स्पीशीज कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या ले रहा है. अब अगर मैं उसको मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या पता पड़ जाएगा कि वो स्पीशीज टोटल कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे या ले रहा है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट्स. दैट how many moles of electrons are being given or taken by that species. अब दोनों केस में अगर n फैक्टर डिफरेंट है तो दोनों केस में the number of electrons given or taken by that species will be different. That is why we can't equate the equivalents.
ठीक है, मिलीमोल्स तो लेकिन वही रहेंगे, मिलीमोल्स तो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, कि भाई जितने एटम्स पहले रिएक्शन से आए उतने एटम्स दूसरे रिएक्शन में रिएक्ट करेंगे. एटम्स विल नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. ये समझ में आया? All right. Now, let's discuss the doubts. Is everyone clear on this aspect? कुछ particular और कोई concept, कोई particular subtopic which you would want to understand? ठीक है, I think वो एक ये strength of oleum और bleaching chlorine वाला part था जो कि थोड़ा सा blur हुआ था वो lecture 6 के अंदर. बट ठीक है, उसको लेकर आपको हार्डली आई थिंक क्वेश्चन ही नहीं मिला होगा बुकलेट में, तो दैट इज ओके. दैट इज नॉट समथिंग विच यू शुड बी मच बॉदर्ड अबाउट. उसके अलावा जो टाइट्रेशन वाला पार्ट ब्लर हुआ था, दैट इज समथिंग वो मैंने आपको बताया है. चलिए, तो बैक टाइट्रेशन वाला एक और क्वेश्चन कर देता हूं मैं एज एन एग्जाम्पल. तो उसमें बस ये हो जाएगा कि आपका जो रिएजेंट है जो एक्सेस में बच जाता है उसका रिएक्शन आपको कराना है, उसका टाइट्रेशन आपको कराना है. All right, so should I do that example or should I proceed with the doubts? We have a good 45 minutes left in the session. Examples. कौन सा वाला एग्जाम्पल? Back titration. बैक टाइट्रेशन का. चलो मैं एक बैक टाइट्रेशन का एग्जाम्पल और बता देता हूँ. ठीक है, बैक टाइट्रेशन का एक एग्जाम्पल देख लो. पहले एक सिंपल एग्जाम्पल कराता हूँ, फिर उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल भी करा दूंगा जो थोड़ा सा डिफरेंट है. So you have this simple example in front of you that 20 grams of barium hydroxide. सर हाँ बोलो. सर पहले वाले एग्जांपल में कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से कर सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ नहीं, तुम्हारी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा माइक के पास आके बोलो. सर जितना सेकेंड रिएक्शन में वॉल्यूम यूज हुआ उसको माइनस करके फर्स्ट वाले रिएक्शन में यूज हुआ निकाल सकते हो. नहीं, यहाँ पर वैसा वाला केस नहीं था ना. यहाँ पर आपको डेटा इसका नहीं मिला कि यू नो आई माइनस, हम लोग ये आई माइनस को अगले केस में नहीं ले जा रहे हैं. हम लोग तो यहाँ पर जो I2 प्रोड्यूस हुआ है उसका सेकेंड रिएक्शन करा रहे हैं. ओके ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं जो आप बोल रहे हो जिस अप्रोच के बेसिस पर, वो वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको बताता हूँ. तो उस केस में आप समझना दैट 20 grams of barium hydroxide is dissolved in 10 ml of 0.5 normal HCl solution. ठीक है, now the excess of HCl solution required 10 ml of 0.2 normal NaOH for neutralization. ठीक है, पूछा जा रहा है अब डिटरमाइन, इनफैक्ट इसको 2 की जगह 20 की जगह 2 कर दो. डिटरमाइन परसेंटेज प्योरिटी ऑफ BaOH होल ट्वाइस सैंपल. ठीक है, तो मतलब ये जो 2 ग्राम था वो एक्चुअली 2 ग्राम नहीं है, 2 ग्राम सैंपल है. उसके अंदर कुछ पार्ट ही बेरियम हाइड्रोक्साइड का है.
that we need to find out. तो अब इसमें क्या हो रहा है? So this is an example of an acid base reaction, acid base titration है, ठीक है. बट इसको भी हम लोग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं. किस तरीके से आप नोटिस करना, इसमें मैं अब आपके सामने बैलेंस्ड इक्वेशन वगैरह ये सब नहीं लिखूंगा, इसको हम लोग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से ही करके देखते हैं. तो ध्यान से नोटिस करना. सो यू हैव बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl का रिएक्शन इन द फर्स्ट केस, ठीक है. आई एम नॉट बॉदरिंग विद राइटिंग द कंप्लीट इक्वेशन बिकॉज आई नो दैट यहाँ पर n फैक्टर 2 है और यहाँ पर n फैक्टर 1 है, ठीक है. इनका कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है तो ये इनके n फैक्टर रहेंगे. नाउ नोटिस करना, इक्विवेलेंट ऑफ BaOH whole twice is equal to equivalent of HCl. ये पहला इक्वेशन बनेगा, ठीक है. तो इसमें इसके मोल्स लेट्स से n हो गए एंड इसका n फैक्टर 2 हो गया, ठीक है. मिली मोल्स ये मैंने इसके n बोल दिए. एंड दिस विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिएक्टेड, ठीक है. अब बोला जा रहा है कि ये जो HCl बच रहा है, ठीक है, HCl ये जो बच रहा है एक्सेस में, ये एक्सेस में था पहले, ठीक है. आई शुड राइट है नॉट एक्सेस बट द लेफ्ट, ठीक है. ये स्टार्टिंग में एक्सेस में था, इसको NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं सेकेंड रिएक्शन में, ठीक है. तो अब यहाँ पर भी आई नो कि इसका n फैक्टर 1 रहेगा और इसका भी n फैक्टर 1 रहेगा. सो आई कैन राइट यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ठीक है. सो नाउ दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ HCl लेफ्ट, ठीक है. अब यहाँ पर नोटिस करना, जो इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिएक्टेड है फर्स्ट रिएक्शन में, that will be equal to equivalent of HCl total minus equivalent of HCl left, ठीक है. टोटल मतलब ओरिजिनल जितने डाले हुए थे मैंने उसमें से आप जो बच गए हैं सेकेंड रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये आप सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, ठीक है. ये इक्विवेलेंट ऑफ NaOH आपको बताया जा रहा है that this is 10 into 0.2, ठीक है. सो यू राइट यहाँ पर 10 into 0.2 एंड इनिशियली कितना है ये 10 into 0.5, ये इतना HCl है. तो इसकी मदद से अब मेरा n का वैल्यू आ जाएगा. तो मुझे मिलीमोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड मिल गए, मिलीमोल से मास आ जाएगा और मास से मैं परसेंटेज प्योरिटी पे कमेंट कर पाऊंगा. ये समझ में आया सबको? इसमें कुछ डाउट है किसी को पर्टिकुलरली? So how did you predict that the n factor of HCl is 1 and the other reactant का n factor is 2? ये तो एसिड बेस का n फैक्टर हमने देखा था ना, दैट एसिड बेस हाँ के हाँ केस got में it, yeah. हाँ याद जितना, आया, ठीक है. हाँ ये क्योंकि नॉन रेडॉक्स है, इसमें कितना H+ दे सकता है ले सकता है उसके बेसिस पे रहता है. ठीक है.
ऑल राइट, नाउ अभी लेट्स से मैं एक और क्वेश्चन क्विकली ऐड कर देता हूं इसमें, आप लोग ट्राई करो. 20 ml of 1/60 molar solution of KBRO3 is mixed with SaO3 2 minus. ठीक है, the excess KBRO3 is back titrated with 5 ml of 1/25 molar NaAsO2 solution. Determine the millimoles of SeO3 2 minus in original solution. ठीक है, एंड इसमें आपको क्योंकि अजीब से कंपाउंड है तो इनकी रिएक्शन भी दी हुई है. BrO3 minus plus SeO3 2 minus is giving Br2 plus SeO4 2 minus plus H2O, एंड दूसरी रिएक्शन है BrO3 minus plus AsO2 minus plus H2O is giving AsO4 3 minus plus Br minus plus H plus. ठीक है, all right, take couple of minutes, try it by yourself. So 0.67. हाँ, the answer is correct. कैसे करा आप एक्सप्लेन करो एक बार. So in this case, we can't equate the equivalence. So I equated the millimoles. Right. Yeah, so millimoles of BrO3 in first reaction will be initial moles minus unused. So the information given 1/60 and 20 whatever there is, I found out the millimoles of BrO3 minus, and from that found out the millimoles of SeO3 2 minus. Right. So yeah, I think if you have heard अच्छे से तो it is something काफी clearly articulate करके बताया है how to approach this question. So let me quickly work on this question for you. Bromine +5 से 0 जा रहा है and selenium +4 से +6 जा रहा है, right? तो इसका n factor 5 हो गया है और इसका n factor 2 हो गया है. ठीक है, अब यहां पर BrO3 माइनस जो एक्सेस में था वो बच गया है, उसका सेकंड रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये बैक टाइट्रेशन का एग्जांपल हो गया. ठीक है,
एंड यहाँ पर वापस से ये +5 से -1 में जा रहा है, तो इसका n फैक्टर 6 हो गया। तो यहाँ पर ये नोटिस करना दैट ये दोनों n फैक्टर्स डिफरेंट है, सेम नहीं है। एंड आर्सेनिक जो है वो +3 से +5 जा रहा है, तो इसका n फैक्टर वापस से 2 आ रहा है। So now from the first reaction, equivalent of BrO3 minus, ठीक है, from the first reaction, equivalent of BrO3 minus is equal to equivalent of SeO3 2 minus। तो अगर मैं यहाँ पे इसके बारे में लिखना चाहूंगा तो यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ BrO3 माइनस रिएक्टेड, ठीक है, विच विल बी टोटल। अब यहाँ पर क्योंकि मैं इक्विवेलेंट्स में नहीं कर पाऊंगा कैलकुलेशन, तो इसके लिए मुझे मिलीमोल्स का ही ध्यान रखना पड़ेगा, दैट यहाँ पर आई शुड राइट मिलीमोल्स of BrO3 minus reacted into इसका इन फैक्टर यहाँ पर कितना है 5 is equal to millimoles of SeO3 2 minus into इसका इन फैक्टर है 2, ठीक है। अब ये जो मिलीमोल्स ऑफ BrO3 माइनस है ये कितना है, इनिशियल मिलीमोल्स minus millimoles reacted in second reaction into 5 is equal to x into 2, ठीक है। अब आप नोटिस करना that second reaction में equivalence of BrO3 minus is equal to equivalence of AsO2 minus लिख सकता हूं मैं ये second reaction से। एंड यहां पर कैसा हो जाएगा, मिलीमोल्स इनटू 6, यहां पर n फैक्टर 6 है ना इसका, एज यू कैन सी विल बी इक्वल टू, यहां पर n फैक्टर 2 है और इसके बारे में बोला जा रहा है दैट ये 5 ml है एंड 1/25 मोलर है, ठीक है। सो दिस देन गेट्स हियर सब्स्टिट्यूटेड ओवर हियर। तो अब आपको आइडिया मिलेगा। अब इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इनिशियल थे 20 इंटू 1/60, इतने मोल्स थे BrO3 माइनस के, माइनस 2 इंटू 5 इंटू 1/25 अपॉन 6 is actually the millimoles that got reacted in the second case. ये millimoles फर्स्ट केस में, फर्स्ट एग्जांपल में रिएक्ट कर रहे हैं, इंटू 5 उनका इन फैक्टर इज इक्वल टू x इंटू 2। इससे आप सॉल्व करोगे तो आपका x का आंसर 2/3 आएगा। ये समझ में आया? Everyone comfortable with this now? इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है। Now let's discuss the doubts जो भी आप लोगों को HA3 और HA4 में आ रहे थे। पहले HA3 के डिस्कस कर लेते हैं। HA3 में किसी ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में कैसा दिया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कितने मोल्स 1 मोल ऑफ HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्शन के बारे में आपको क्या क्या दिया जा रहा है, दैट AS2S3 इज रिएक्टिंग विद HNO3 एंड यहां पर क्या क्या बन रहा है, H3ASO4 बन रहा है एंड H2SO4 बन रहा है एंड HNO3 खुद जो है वो NO में आ रहा है।
ठीक है, आर्सेनिक एज यू कैन सी, सल्फाइड यहाँ पर क्या होता है -2, सल्फाइड -2 होगा तो आर्सेनिक +3 रहेगा। एंड नाइट्रोजन यहाँ पे +5 है। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो आर्सेनिक +5 है, सल्फर +6 है, नाइट्रोजन +2 है। ठीक है, सो अब अगर मैं आपसे इसका इन फैक्टर पूछूंगा तो आपका आंसर क्या रहेगा? HNO3 का +5 से +3 जा रहा है और एक ही एटम जा रहा है, तो इन फैक्टर 3 हो गया। एंड इस केस में मैं आपसे इन फैक्टर पूछूंगा तो क्या रहेगा? पहले तो मुझे कोई बता पाएगा कि डज इट बिलोंग टू सिंपल केसेस और मिसलेनियस केसेस? Miscellaneous. कौन सा वाला मिसलेनियस कह रहे हो आप? मिसलेनियस में मल्टीपल थे ना? Both are getting oxidized. राइट, तो मिसलेनियस एंड बोथ आर्सेनिक एंड सल्फर आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो इस केस में इन फैक्टर के लिए क्या करना पड़ता था? नेट एन फैक्टर फाइंड करना। राइट, नेट एन फैक्टर देखना पड़ रहा था। इसमें कोई स्पेशल फॉर्मूला वगैरह नहीं था, डेफिनेशन एप्लीकेबल था। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली कैलकुलेट कर लो, एन फैक्टर कैसा रहेगा? आर्सेनिक 3 से 5 जा रहा है, 2 का चेंज है 2 आइटम के लिए, एंड सल्फर -6 से +6 -2 से +6 जा रहा है, तो 8 का चेंज हो गया 3 आइटम्स के लिए, तो इसका इन फैक्टर 28 आ गया। ठीक है, नाउ you can do your simple calculation that equivalent of AS2 S3, ठीक है, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HNO3। HNO3 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो n इंटू 28 इज इक्वल टू 1 इंटू 3, तो n की वैल्यू 3/28 आ गई। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। देन आई थिंक 6th भी पूछा है किसी ने, 6th में कैसा रहेगा? कुछ बोला जा रहा है कि KMnO4, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है किसी तो रिडक्टेंट के साथ में, ठीक है, एंड एसिडिक मीडियम में कर रहा है, तो हमारा नॉलेज हमें बताता है कि मैंगनीज तो +2 में चला जाएगा, Mn+2 में। ठीक है, एंड ये जो रिडक्टेंट है, ठीक है, इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ रिडक्टेंट आ जाएगा। अब मैंगनीज जो है वो खुद तो +7 से +2 में जा रहा है, और रिडक्टेंट के बारे में क्या बोला जा रहा है? दैट यहाँ पर एक का चेंज आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड 2 आइटम्स हैं जिनके लिए चेंज आ रहा है पर मॉलिक्यूल, तो इसका इन फैक्टर 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पर KMnO4 का इन फैक्टर रहेगा 5, क्योंकि 7 से 2 जा रहा है, 5 का चेंज आ रहा है और एक ही आइटम के लिए आ रहा है। राइट, सो दिस इम्प्लाइज, अब आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हो, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्टेंट। ठीक है, 5 इंटू, अब दिस इज 20 ml एंड 0.01 मोलर विल बी इक्वल टू 2.52 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये मोल्स हो गए और ये पर लीटर है तो मोलारिटी हो गई। ठीक है, एंड इसका 25 ml है और इसका इन फैक्टर 2 है, तो इससे आप मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हो। क्लियर? देन somebody had asked 8th क्वेश्चन एज वेल। 8th क्वेश्चन में कैसा है? वापस से रिएक्शन आपके सामने क्लियर होना चाहिए। H2O2 प्लस I- एंड एसिडिफाइड मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में तो ये क्या हो जाएगा?
राइट, I माइनस तो I2 में चला जा रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है 0 से सॉरी -1 से 0 जा रहा है, तो H2O2 के साथ में क्या होगा, वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होके -2 में चला जाता है विच इज H2O, ठीक है। एंड जो आयोडीन लिबरेट हुआ है उसको बोला जा रहा है दैट इट रिएक्ट्स विद H2O3 2-, तो फिर इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा, राइट। वॉल्यूम स्ट्रेंथ आई एम अज्यूमिंग कि आपने वीडियो लेक्चर्स में पढ़ लिया है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि आपको यूज करना रहेगा। लेट मी क्विकली शो यू दैट एज वेल। एक बार जस्ट यहाँ पे फटाफट ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लेते हैं ताकि एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, राइट। बोथ केसेस में n factor of I2 is 2, so this implies I can equate the equivalents of H2O2 is equal to equivalents of H2O3 2-, ठीक है। अब equivalents कैसे लिखूंगा मैं इसके, N1 M1 V1 is equal to N2 M2 V2, इसका n फैक्टर है 1, मोलारिटी आपको दी हुई है 0.1 एंड इसका 20 ml लग रहा है। H2O2 का n फैक्टर है 2, मोलारिटी आपको दी हुई नहीं है, मोलारिटी अपन निकाल लेंगे एंड वॉल्यूम इसका 10 ml दिया हुआ है, तो इससे मोलारिटी आ जाएगा, ठीक है। मोलारिटी ऑफ H2O2 will come out to be 0.1 molar, right? This is the concentration of H2O2. अब आपको रिलेशनशिप पता है that volume strength of H2O2 solution is equal to, क्या रिलेशनशिप होता है मोलारिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 into मोलारिटी ऑफ H2O2 solution। तो बस ये 11.2 into 0.1, तो ये 1.12 आ गया आपका आंसर, ठीक है। देन 8th क्वेश्चन भी पूछा है। 8th क्वेश्चन में कैसा रहेगा, 10 ml of H2O2 solution, ओ सॉरी ये तो 8th क्वेश्चन था, हाँ तो 8th क्वेश्चन हो गया है। मुझे एक्चुअली अब कौन सा देखना है, 13th, माय बैड, 13th क्वेश्चन में in a reaction 4 moles of electrons are transferred to 1 mole of HNO3 when it acts as an oxidant, the possible reduction product is, so HNO3, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन +5 स्टेट में है, ठीक है, एंड इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो नाइट्रोजन किस स्टेट में जाएगा, +1 में। तो अब आउट ऑफ द ऑप्शंस दैट वी हैव, ओनली B option has nitrogen in +1 state. That's it. That becomes my answer. Then somebody had asked 4th question as well. 4th में भी कैसा रहेगा, वापस से नोटिस करो यहाँ पर Cr2O7 2-, ठीक है, एंड A यहाँ पर N- में है, ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट, ABD कंपाउंड में। एसिडिक मीडियम में क्रोमियम तो +3 में चला जाता है, ठीक है, एंड आपसे ये पूछा जा रहा है कि अब ये A किस स्टेट में जा रहा होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना कि क्रोमियम तो खुद +6 से +3 जा रहा है, ठीक है, तो दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन, तो ए शुड अंडरगो ऑक्सीडेशन, एज एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा भी है उसका दैट आफ्टर ऑक्सीडेशन। तो इसका एन फैक्टर अगर मुझे कैलकुलेट करना है, अगर मैं इसको x बोल दूं, ठीक है, एंड दिस इज समथिंग +x, तो नोटिस करना कि मुझे -n से +x जाना पड़ रहा है, ठीक है, 0 को क्रॉस करते हुए, तो चेंज कितना आ रहा है एन फैक्टर का, तो ये x + n दिख रहा है एन फैक्टर, ये समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? ऑलराइट, तो अब बस आपको इक्विवेलेंट इक्वेट करना है, इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O72 माइनस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ABD। अब इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, दैट दिस इज 1.68 इंटू 10⁻³ मोल्स इंटू इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6, ठीक है, +6 से +3 जा रहा है, 3 का चेंज 2 आइटम है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ABD, तो इसके मोल्स है 3.26 इंटू 10⁻³ और इसका एन फैक्टर कितना है n+x, तो इससे अब आप x की वैल्यू निकाल लो। This is clear with everyone? This will come out to be 3 minus n. ठीक है, then seventh question is one more question that has been asked. वापस से वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, equivalent of H2O2 is equal to equivalent of SN 2 plus, so 100 into molarity into इसका n factor 2 रहेगा, and this will be equal to 50 into 0.2 into इसका n factor भी 2 रहेगा, उससे molarity आ जाएगा, and volume strength will be 11.2 into molarity, ठीक है। यहाँ तक में कुछ डाउट्स हैं किसी को? Anyone wants to ask anything? ठीक है, so I think HA3 is good to go। मैं आप लोगों को HA3 का और जो मैंने आज मिसलेनियस समरी लिखी थी उसका ये PDF शेयर कर दूंगा। HA4 हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, दैट विल नॉट बी अ बिग चैलेंज ऑल्सो। जिन लोगों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे हैं, यू विल हैव मोर टाइम टू कवर देम, एंड द नेक्स्ट 2 days are something which again I would request you to focus on volumetric only, ensure that आपका ये completion हो रहा है जितना मैंने आपको अभी तक का टास्क दिया है उसका, and then when the Thursday lecture is there, उसके बाद में once we are done and discussed with the doubts, I will give you the next task to be done from electrochemistry, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर का थोड़े पार्ट में ना मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पहले से एक आइडिया दे दूंगा, वैसे तो जो लेक्चर होगा उसमें भी सब चीजें हैं ही सही, बट लाइक आई विल गिव सम कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट यू हैव टू डू एंड हाउ यू हैव टू डू, एंड बेस्ड ऑन दैट देन वी कैन हैव आवर डिस्कशंस। सो दिस साउंड्स अबाउट व्हाट was the key message for the day. Apart from this, anyone wants to add something more to this, wants to add some doubt or some concept that they want to discuss?
ठीक है, so if this is the case, then let's close the session for the day. And Sir, हाँ बोलो. sir, what is specific gravity? Density. Okay, sir. Thank you, sir. All right, so let's close the session for the day. I'll share these PDFs. If you weren't able to copy something down, तो आप आराम से इसमें से ले लेना. And in the meantime, if you have more time, to focus on the completion of chemical kinetics more, and then we can in the next class discuss HF4. Chalo. Thank you guys. Thank you, sir. Bye. Bye bye. Thank you, sir.